Hi everyone, it's me, your Manu Issue, and welcome back to my YouTube channel, Manu Issue ACC classes. So in this video, I'm going to do the further more question from the Copland kit of the at FET. So if you're watching my video for the first time, don't forget to subscribe my channel and share it among your friend if you really think it's really worth and your friend could be benefited. So share it among your friend and don't forget to hit the bell icon for more updates regarding my video. Now you can clear your doubt over the Instagram, Telegram, Facebook, Twitter, wherever you feel easy, and the description of the ID is given in the description box below. So now coming to the question. So our in previous video I had done till question number 60, I think, right? Yeah. So now come to the question number 61. Using the financial information provided, calculate the following ratio for the both year. So this one is very easy, you can calculate, no issue. The only the problem I think you guys might face in the current ratio, जहाँ पे हम लोग को loan amount use करना होगा. अब you might be thinking the loan is non-current liability, why should we like include? क्योंकि ये पेमेंट के लिए इसका ड्यू है 2000 x6 एंड ड्राफ्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 2000 x5. So within the 1 year it will be payable, so that's why it's a current liability. But actual के केस में क्या है, अभी 2 साल बाकी है, so in that case it's a non current liability, we won't included. ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है, रेस्ट यू कैन डू. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रिलेशन टू द मूवमेंट इन द पेबल्स पेमेंट पीरियड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट टू द ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ ऑडिट ट्रिक्स. सो लेट्स फर्स्ट कैलकुलेट द पेबल पेमेंट पीरियड रीडिंग द सिनारियो. सो हालांकि सिनारियो भी पढ़ लेते हैं कैलकुलेशन करने से पहले. इट इज़ द 1st July 20x5. यू आर द ऑडिटर सीनियर इन द साइमन एंड को. इट मीन्स ऑडिट फॉर्म नेम इज साइमन एंड को. You are planning the audit of Epica company for the year ending 31st July 20x5. So year end जो कंपनी का ऑडिट करने वाले हैं, its year end is 31st July 20x5. The audit manager has held a planning meeting with the finance director and has provided you with the following notes of his meeting and financial statement extracts. Epica company has experienced difficult trading condition this year and which has resulted in the sales price being reduced. Despite this, revenue has continued to fall. In an attempt to improve profit, Epica company has switched to cheaper supplier, which has resulted in the lower quality goods being purchased and a corresponding increase in return from customer. During the year, the director performed a review of assets life, which has resulted in an increase in the useful life of the majority of tangible non-current assets. Accordingly, the depreciation charge has reduced from $1 million in 20x4 to $0.8 million in 20x5. Okay, finally we do have given the financial statement. So let's calculate the payable payment period first. ओके, सो पेबल पेमेंट पीरियड अब किस कौन से ईयर के लिए 2 ईयर दिया हुआ ना. वन इज द ड्राफ्ट एंड वन इज एक्चुअल. ओके, सो पेबल पेमेंट पीरियड का फॉर्मूला क्या है, पेबल्स डिवाइडेड बाय द क्रेडिट परचेज, और क्रेडिट परचेज नहीं है, इन दैट केस वी कैन यूज द कॉस्ट ऑफ सेल्स. सो व्हाट इज द पेबल बैलेंस, 1.6 डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स 7 into 365, so 84 days, no 85 83 over. And for the actual sales, trade payable is actual 20x5, the trade payable is 1.2 and the cost of sale is 8 and into 365, so it's 55. Okay, we can see the payable payment period has been increased to 83 days from 55 days.
सो अब ऑप्शन देखते हैं. अब क्वेश्चन इज टेलिंग इन रिलेशन टू द मूवमेंट इन द पेबल पेमेंट पीरियड. ये मूवमेंट क्या है हमारा, इंक्रीज है, राइट. इंक्रीज मतलब ओवर है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट रिलेवेंट टू द ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ द ऑडिट रिस्क. द फर्स्ट टू ऑप्शन में यू कैन सी पेबल पेमेंट पीरियड डिक्रीज की बात करिए, बट इन आवर केस इट हैज़ बीन इंक्रीज. सो ये तो ऐसे ही इलिमिनेट हो जाएगा. अब बच गया सी एंड डी, अमॉन्ग विच वन ऑफ द ऑप्शन कुड बी द आंसर. Let's see the third option. A payable payment period has increased, which could indicate Epica company has a cash flow problem. Obviously this gonna be the fact. आप देखो ऊपर कैश इसका बैलेंस डिक्रीज हो रहा है, ऐसा नहीं है, इसका कैश बैलेंस डिक्रीज हुआ है एंड पेबल पेमेंट भी इंक्रीज हो रहा है. इट मीन्स द कंपनी इज फेसिंग ए कैश फ्लो प्रॉब्लम. ठीक है, सो ये ऑप्शन करेक्ट होना हुआ. अब डी पढ़ो. डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, पेबल पेमेंट पीरियड हैज इंक्रीज विच कुड इंडिकेट इपिका कंपनी इज मैनेजिंग इज वर्किंग कैपिटल साइकिल बाय डिलेइंग द पेमेंट टू सप्लायर. सो वो वर्किंग कैपिटल को कैसे मैनेज करे, दैट्स नॉट द कंसर्न ऑफ द ऑडिटर, वो मैनेजमेंट का पार्ट है कि नहीं. सो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर नहीं हुआ. ठीक है. So moving to the next, which three of the following describe audit risks that should be addressed during the audit of Epica company? Okay, so first is inventory may be overstated if sales price has fallen below cost. Obviously ऊपर कहा गया है Epica company is facing the difficulty experience difficult trading condition in this year which is resulted इन द सेलिंग प्राइस बिंग रिड्यूस. अब सेलिंग प्राइस इनका रिड्यूस हो रहा है. अब इससे क्या होगा, हो सकता है एनआरबी माइट बी लोअर दैन द कॉस्ट, है कि नहीं. सो यहाँ पे इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में इम्पैक्ट आ सकता है. सो दैट्स वन काइंड ऑफ ऑडिट रिस्क. ठीक है, सो ऑप्शन वन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन, प्रोविजन फॉर द रिटर्न ऑफ गुड्स मे बी अंडरस्टेटेड. अब यहाँ पे देखो नीचे में कहीं कहा गया था कि despite this, revenue has continued to fall. In an attempt to improve profit, Epica company has switched to a cheaper supplier, which has resulted in the lower quality good being purchased and corresponding increase in the return from the customer. है कि नहीं. So यहाँ पे कस्टमर से आपका रिटर्न क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है. क्यों, क्योंकि आपने चीपर सप्लायर को स्विच किया जिसकी वजह से क्वालिटी रिड्यूस हो गया. एक सेकेंड ना. ओके हाँ. सो नाउ व्हाट्स आवर ऑप्शन वाज, हमारा ऑप्शन क्या था, प्रोविजन फॉर द रिटर्न गुड्स में बी अंडरस्टेटेड. अब हो सकता है कि इतना ज़्यादा गुड रिटर्न हो रहा है तो आप प्रोविजन मतलब लाइक कम बुक करें या फिर जितना चाहिए उतना बुक ना करें. सो दैट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ द ऑडिट रिस्क. अब थर्ड, इपिका कंपनी हैज एक्सपीरियंस डिफिकल्ट ट्रेडिंग कंडीशन कॉजेज रेवेन्यू टू फॉल. दिस इज पर्टिकुलरली ए बिजनेस रिस्क. ये ऑडिट रिस्क हमारा नहीं है. सो ठीक है. डी क्या कहता है, सेल्स प्राइस हैज बीन रिड्यूस विच विल इम्पैक्ट प्रॉफिटेबिलिटी. दिस इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ द बिजनेस रिस्क, नॉट द ऑडिट रिस्क. तो ये भी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा. सो लोअर क्वालिटी ऑफ गुड हैव बीन परचेज रिजल्टिंग इन द कंप्लेन फ्रॉम द कस्टमर. सो ये भी आपका बिजनेस रिस्क में ही जाएगा ऑलमोस्ट. और लास्ट है, इन्वेंट्री में भी मिस स्टेटेड इफ रिटर्न गुड हैज़ नॉट बीन रिकॉर्डेड बैक इनटू द इन्वेंट्री. ये हमारा ऑडिट रिस्क है क्योंकि तीन ऑप्शन कहा गया था. ठीक है. सो अगर हम लोग रिकॉर्ड बैक नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा इन्वेंट्री के वैल्यू मिस स्टेटेड हो सकता है. तो ये भी वन काइंड ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट कहता है. सो पर्टिकुलरली आपको क्या आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हिट करेगा, उसको मिसलीड करेगा, है कि नहीं. सो ये सब आइडेंटिफाई करके हम लोग ऑडिट रिस्क को चूज़ करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे. ठीक है. ओके. सो 64, विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एप्रोप्रिएट ऑडिट रिस्पॉन्स टू ऑडिट रिस्क रिलेट टू द इंक्रीज इन द यूजफुल लाइफ ऑफ टेंजिबल नॉन करेंट एसेट ऑफ इपिका कंपनी. सो ऊपर कहीं पे लाइफ इंक्रीज हुआ है क्या. ड्यूरिंग द ईयर डायरेक्टर परफॉर्म ए रिव्यू ऑफ एन एसेट lives and which has resulted in an increase in the useful life of majority of tangible non-current assets.
जिसकी वजह से अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन चार्ज हैज रिड्यूस फ्रॉम 1 मिलियन इन 20x4 टू 0.8 मिलियन 20x5. सो क्वेश्चन कहता है विच टू ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब एप्रोप्रिएट ऑडिटर रिस्पॉन्स. अब ऑडिट रिस्क के रिगार्डिंग हमारा ऑडिटर रिस्पॉन्स क्या क्या हो सकता है वो क्वेश्चन पूछ रहा है. So calculate whether the change in depreciation charge is material. If not material, no further action is required. So हम लोग इंक्वायरी ये जो ऑप्शन है ये जो एक्यूरेसी को बता रहा है. ठीक है, हम लोग यहाँ पे तो इंक्वायरी कर रहे हैं रिगार्डिंग कि ये आपने यूज़फुल लाइफ को क्यों इंक्रीज़ किया है, ये हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं. बट ऑप्शन ए तो एक्यूरेसी को बता मतलब लाइक एक्यूरेसी चेक करने को बता रहा है. कैलकुलेट वेदर चेंज इन डेप्रिसिएशन चार्ज इज मटेरियल. इफ़ नॉट नो मटेरियल नो फर्दर एक्शन इज नेसेसरी. ठीक है. सो सेकेंड क्या कहता है डिस्कस विद डायरेक्टर द रीज़न फॉर द चेंज इन द यूजफुल लाइफ. या दिस कुड बी द वन ऑफ द पॉसिबल रीज़न. हम लोग डिस्कस करेंगे कि डायरेक्टर से कि रिगार्डिंग द चेंज इन द यूजफुल लाइफ क्यों किया आपने, है कि नहीं. सो उसके बाद थर्ड कंपेयर द एक्चुअल यूजफुल लाइफ ऑफ टैंजिबल नॉन करंट एसेट रिसेंटली डिस्पोज ऑफ न्यू डेप्रिसिएशन पॉलिसी टू असेस वेदर दिस रिफ्लेक्ट द यूजफुल एक्चुअल यूजफुल economic life. Yeah, this could be also one of the appropriate like ये auditor response regarding the increase in the useful life, ये भी एक कह सकते हैं. अब बच गया लास्ट कंपेयर द फिक्सचर एंड फिटिंग डेप्रिसिएशन रेट दिस ईयर टू लास्ट ईयर. अब यहाँ पे रेट की बात कर रही है. ठीक है, यहाँ पे रेट को हम लोग थोड़ी ना कंपेयर कर रहे हैं. सो दिस इज नॉट ए ऑल्सो वन ऑफ द नॉट ए एप्रोप्रिएट ऑडिटर रिस्पॉन्स. ठीक है. So 65. Which of the following correctly describe term performance materiality? So basically it's a straightforward question. Definition के according C आएगा. ठीक है. Okay, so in next video we will do the further next question. ठीक है. So तब तक के लिए stay tuned with my channel and thank you guys for watching my video.